Okay, good evening again. So everyone just put your attendance in the chat box. Recording has started. Everyone just quickly put the attendance. Okay, so today is our science class instead of maths 1 class. As our syllabus is completed of maths 1, okay. So I'll be taking some portion of your science subject. Okay, so see, here is index in front of us, and I'll be taking your 11th chapter, that is a reflection of light, 12th chapter, that is study of sound, 13th chapter, carbon, an important element, and the 18th chapter. Okay, so these four chapters I am going to teach you, and remaining chapters Aarti ma'am will teach you. Okay, so I hope everybody has put attendance. Okay, ठीक है, yeah, it's more of a physics. ठीक है, yeah. So shall we start? I'm just presenting you the screen for the chapter that we are going to start today. That is reflection of light. Okay, reflection of light. So let me just go to the chapter, and then I'll show you the screen. Okay, so here we go. Reflection of light. Now, first of all, first question is, what is light? Okay, what is light? How light can be defined? Can anyone? Can anyone answer this? What exactly is light? See, answer is here only. Light is an agent which gives us information about what is happening in our surroundings. Okay, हमारे आजू बाजू में जो चीजें घट रही है, okay, जो कुछ हो रहा है, वो हमें दिख रहा है. Why it is visible to us? Because of light. Okay, light from some source is striking on that object, and that light is being reflected by that object, and that light is received by our eyes, and that's why we are able to observe or see that object. ओके मतलब किसी एक सोर्स से, फॉर एग्जांपल अगर हम दिन की बात करते हैं तो दिन में सोर्स क्या होता है, लाइट का सोर्स क्या होता है हमारे लिए, मोस्टली सन होता है. सन से जो लाइट आती है वो किसी चीज पे गिरती है, एंड दैट एवरी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए, जो भी ऑब्जेक्ट आप अभी देख पा रहे हो, हर एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट. ओके, सो रिफ्लेक्शन होता है, एंड वो लाइट हमारे आंखों पे पड़ने के बाद में मतलब हमारी आंखें उसे प्रोसेस करती है, एंड हम उस चीज को देख पाते हैं. ओके, सो इस तरह से लाइट मतलब लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हमारे लाइफ का, जो कि बहुत जरूरी है टू फील आवर सराउंडिंग्स. ओके, now what is meant by reflection of light? Which are the different types of reflection? Okay, so I think you had one chapter in 8th standard also regarding light. उसमें थोड़ा सा आपको basics सिखाया रहेगा. Okay, yeah, what is reflection? So Anuj is giving the and for some definition about reflection of light. We see all things by reflection of light, which is exactly the correct answer of how reflection is. Okay, or what reflection is. If reflection is not there, will not be able to see the things. Okay, so reflection is very necessary. Now we can enjoy various wonders of nature like the sunrise, sunset, and a rainbow only because of there is a light. It is only because of light that we can see the lush green vegetation, colorful flowers, deep blue skies in the day, and stars shining in the dark night sky in the beautiful world around us. We can see the man-made objects in our surroundings as well. Light is actually electromagnetic radiation which causes the sensation of vision. So इन सब चीजों में ये जो थिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, कि लाइट यानी कि क्या, लाइट में क्या होते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड लाइट.
लाइट में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं फोटॉन्स। ओके, फोटॉन्स, आप लोगों ने इसके बारे में नाम सुना होगा फोटॉन्स के बारे में। एंड लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ओके इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में सीखना है, लेकिन इन द 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, इन द एंड 12th स्टैंडर्ड। ओके, तो आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाके इन सब चीजों के बारे में आप अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन अभी हमें क्या ध्यान में रखना है कि लाइट इज एक्चुअली electromagnetic radiation. Okay, so this is the important word. Whenever you write a definition of light, make sure this word comes in your definition. Okay, so ये word आपने definition में लिखना है कि light is actually a electromagnetic radiation. Now, light reflects differently from various surfaces around us. We have already learned that the reflection from smooth flat surface is a regular reflection, while rough surface is a rough surfaces reflect a light irregularly. Okay, तो एक सिंपल से फिनोमेना है या फिर एक सिंपल प्रॉपर्टी है लाइट की, क्या है कि अगर किसी स्मूथ या फिर फ्लैट सरफेस पे लाइट गिरती है, स्ट्राइक होती है, सो उसका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। एंड इफ इट स्ट्राइक्स ऑन अ, okay, yeah, you had learned this last year. Okay, you remember that thing. Okay, very good. So if light strikes on a rough surface, so the reflection is also irregular. यानी कि कैसा, देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ स्मूथ सर्फेस लाइक दिस, ओके दिस इज नॉट एक्चुअली द स्मूथेस्ट सर्फेस दैट आई वांटेड टू ड्रॉ। ओके, तो मान लीजिए कि ये स्मूथ सर्फेस, सो जैसे लाइट यहाँ पे आएगी, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड एट अ इक्वल एंगल। ओके, सो ये एंगल और ये एंगल जो है वो इक्वल रहेगा ऑन द स्मूथ सरफेस। लेकिन अगर आपका सरफेस लाइक समथिंग लाइक दिस है, ओके, सो इफ लाइट स्ट्राइक्स from here, so it may get reflected back like here. Okay, again if it strikes here, so it may get reflected like this. Okay, so इसमें रिफ्लेक्शन जो रहेगा रफ सरफेस में, that will not be regular. Okay, so ये चीज आपने शायद लास्ट स्टैंडर्ड में सीखी है, जो कि मैत्रेय कह रहे हैं। ओके, नो light reflects on the glass or the mirror, you want to say, or on the mirror, because light passes through the glass, isn't it? Light goes through the glass. Okay, so mirror and types of mirrors. So what is a mirror? Yeah, mirror. So we need polished surfaces for reflecting light. This is because of polished surfaces absorb less light and so maximum light gets reflected. ठीक है, तो why we need mirror? मिरर की जरूरत क्यों पड़ती है? So mirror is nothing but a polished surface. So polished surface की प्रॉपर्टी क्या है? It reflects maximum light. उस पे जो कुछ भी लाइट गिरती है वो सारी, मतलब नॉट सारी बट 99.9% लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देता है। थोड़ी सी जो लाइट है वो ऑब्जर्व कर लेता है। लाइट ऑब्जर्व करना यानी क्या? व्हाट इज मींस बाय ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो समझ लीजिए कि आपके पास में एक मिरर है। ओके, यू हैव वन मिरर एंड यू हैव लेट अस सपोज शीट ऑफ स्टील। ओके, शीट ऑफ स्टील। तो आप अगर शीट ऑफ स्टील में आपका चेहरा देखोगे, ओके इफ यू ट्राई टू सी योर इमेज इन द शीट स्टील, सो आपको इतना अच्छा आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा जितना कि मिरर में दिखाई देगा। बराबर? अब बताइए, मिरर में ज्यादा अच्छा दिखेगा या फिर वो उस शीट में अच्छा आपको अच्छा चेहरा दिखेगा? वो शीट भी जो है वो पॉलिश्ड है, तो मिरर में दिखेगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे से जो कुछ भी लाइट जा रही है रिफ्लेक्ट होके, आप पहले तो लाइट आपके चेहरे पे गिरेगी, फिर आपके चेहरे से रिफ्लेक्ट होकर लाइट मिरर में जाएगी, एंड मिरर से वो कंप्लीट लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तब जाके वो लाइट मतलब आपको कंप्लीटली आपकी इमेज दिखाई देगी। लेकिन अगर हम शीट स्टील की बात करें, तो उसमें क्या होगा? आपके चेहरे से जो लाइट जा रही है उस स्टील के शीट पे, तो उसमें कहीं ना कहीं अब्जॉर्प्शन है, लाइट का अब्जॉर्प्शन है। मतलब जो पूरी लाइट आपके चेहरे से जा रही है वो कंप्लीट या फिर मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से आपको आपका चेहरा इतना अच्छे से उस
सरफेस पे नहीं दिखेगा। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। मिरर, क्या इंपॉर्टेंस है मिरर का? क्योंकि मिरर एक पॉलिश सरफेस है, सो इट अब्सॉर्ब्स लेस लाइट एंड it gives maximum reflection. Okay, in scientific language, a surface which reflects light and creates clear images is called mirror. So mirror की definition भी यहाँ पे दी है, देखिए, a surface which reflects light and creates clear images is called a mirror. A mirror is a reflecting surface. So ये definition आपने, if you have hard copy of your book, so you have to underline these definitions with the help of pencil. Okay, so pencil से ये definition आप underline कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे या फिर रिवीजन अब जब आप करेंगे तो आपको आसानी होगी कि इसमें important क्या है। See, if you are going for exam tomorrow, अगर आप एग्जाम को कल जाने वाले हैं साइंस की, so it is not possible for you to read from first page to the last page of your book. पहले पेज से लास्ट के पेज तक आप नहीं पढ़ सकते। ओके, सो आपको आदत क्या होनी चाहिए कि जो कुछ भी डेफिनेशन है आप उनको अंडरलाइन कर दीजिए, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू एग्जाम you just have to read those underlined sentences or the definitions. Okay, so इससे आपका रिवीजन अच्छा होता है, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप सिर्फ वही रीड करते हो, एंड जो चीजें एलिमिनेट की जा सकती है उनको आप नहीं पढ़ते हो, तो इससे आपका समय भी बचता है। सो इट इज अ गुड हैबिट टू अंडरलाइन important definitions in your book. Okay, now we use various types of mirror in our daily life. Mirrors are of two types, plain mirrors and spherical mirrors. तो नॉर्मली हमारे घर में जो मिरर रहता है दैट इज ऑफ प्लेन मिरर टाइप। ओके, या फिर जो बट वी कैन से गाड़ियों के लिए मिरर रहते हैं ना, साइड मिरर्स, so they are kind of a spherical type mirrors. They are part of spherical mirrors. Okay, they are not completely spherical mirrors, but curved mirror जिसे कहते हैं हम, so they comes under this category spherical mirrors. So इन दोनों मिरर के बारे में हम सीखेंगे कि प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ओके, now an introduction to scientist. The German scientist Justus von Liebig coated the plane surface of piece of ordinary glass with silver metal and made the first mirror. Such a mirror is called a silvered glass mirror. तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डिनरी ग्लास के पीछे, एक ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसके पीछे उन्होंने एक सिल्वर मेटल की जो थिन शीट होती है उस शीट को पेस्ट कर दिया, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट they made or he made the mirror, and that was the first mirror, and it was called as, or it is called as silvered glass mirror. Okay, now plain mirror. so plain mirror के बारे में तो हम सब ने मतलब हम सबको प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट मालूम है। ओके, ज्यादा प्रॉपर्टीज तो है नहीं इसकी, लेकिन वी एवरी वन ऑफ अस हैज used plane mirror, isn't it? So we know about plane mirror, but still we're going to read this passage. Plane mirrors are used in various activities in our day-to-day life. A mirror is made by coating the back surface of a flat and smooth glass piece with a thin reflecting film of aluminum or silver. To protect this reflecting film and to make that side opaque, another coat of substance like lead oxide is given over it. Okay, so हमारे घर में जो हम मिरर यूज करते हैं, क्या अभी हम कभी हमने इसके बारे में सोचा है कि वो मिरर, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? इज इट ओके? मैत्रेय, धीरज, व्हाट अबाउट अदर्स? मैंने सबको क्वेश्चन पूछा है, सबका रिप्लाई आना चाहिए। ओके जय, ओके ऋषि, हु इज नॉट रिस्पॉन्डिंग? अविग्ना, ओके ठीक है। सो जो हम मिरर यूज करते हैं हमारे घर में, कभी हमने सोचा है कि वो मिरर किस तरह से बनाया जाता होगा? ओके, हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? मोस्ट प्रोबेबली आपने नहीं सोचा होगा। ओके, सो यहाँ पे आंसर दिया है कि किस तरह से बनाया जाता है। सी,
मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, आई होप यू आर ऑल्सो अंडरलाइनिंग इन योर बुक, ओके, इन योर हार्ड कॉपी. सो अ मिरर इज मेड बाय coating the back surface of a flat and smooth glass with a thin reflecting film of aluminum or silver. तो एक ग्लास, जो थिन ग्लास रहता है, ग्लास का पीस, उसके पीछे से कोटिंग लगाई जाती है. किस चीज की कोटिंग लगाई जाती है? फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर. कभी आपने पान खाया होगा, ओके, पान पान पे जो एक सिल्वर कलर का एक फिल्म लगा के हमें देते हैं, ओके, पान वाले. सो दैट टाइप ऑफ फिल्म, वेरी थिन फिल्म, बहुत ही थिन थिन फिल्म रहती है, जो कि पीछे से लगाई जाती है एक ग्लास पीस के, एंड दैट मेक्स द मिरर. तो इसमें उस फिल्म के पीछे भी, उस फिल्म के पीछे भी एक सब्सटेंस लगाया जाता है. दैट सब्सटेंस इज लीड ऑक्साइड. लीड ऑक्साइड का सब्सटेंस होता है. वो सब्सटेंस क्यों लगाया जाता है? क्योंकि टू मेक द मिरर और दैट साइड ओपेक, मतलब कि हमें मिरर के पीछे जो चीजें हैं वो दिखाई ना दे. ओके, हमें सिर्फ हमारा रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए ना, हमें मिरर के पीछे जो चीजें हैं वो नहीं दिखनी चाहिए. सो दैट्स वाई लीड ऑक्साइड की एक लेयर वहां पे दी जाती है. Okay, so this is how the mirror is made. This is the procedure of making mirrors. Okay, so there are certain different processes as well. Baki processes bhi hai. Not, this is not the one and the only technique to make the mirror. Okay, so you will find lots of techniques of making mirror on YouTube if you search for it. Okay, if you have curiosity about it. So can you recall what are the laws of reflection of light? सो ठीक है, हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में. सो आई जस्ट वांट टू रिमेंबर वन मोर वर्ड, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हैव यू हर्ड अबाउट इट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसी ने सुना है इस वर्ड के बारे में? हम सीख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एनीवन? किसी ने इस वर्ड के बारे में सुना है? Anyone? Yes, no? Okay, Maitreya is saying had and question mark is there. So I think he's not confident about whether he has heard about refraction or not. बाकी लोग बताइए, धीरज, अनुज, ऋषि, जय, आप लोगों ने सुना है या फिर नहीं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में? Okay, yes, you have. Okay, no, no. See, I'm not going to ask you about it. Okay, I'm just, I'm just trying to distinguish between these two words. ये दो चीजें. Okay, you forget. Okay, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए. अभी आप यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीख रहे हो. सो सिमिलरली यू हैव वन मोर चैप्टर इन द 10th स्टैंडर्ड, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, 10th स्टैंडर्ड में वो है. तो मैत्रेय का कहना है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट. Actually we cannot say change in direction, but we can say the light bends when passing through one medium to another. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है, सो इट स्लाइटली बेंड्स. स्लाइटली इट बेंड्स मतलब थोड़ी सी वो बेंड हो जाती है while changing the medium. Okay, so that is the definition of refraction. And reflection means what? After striking the surface, the light comes back to the medium. Okay, मतलब जिस मीडियम से वो लाइट जा रही है, स्ट्राइक होके उसी मीडियम में लाइट अगर वापस आती है तो दैट इज रिफ्लेक्शन. Okay, so don't get confused about refraction, forget about it, just focus on reflection of light. So what are the laws of reflection of light? So there are several laws, आप लोगों ने पढ़े होंगे 8th स्टैंडर्ड में. अगर ये सरफेस है, so this is called as the angle of incidence and this is the called as the angle of reflection. बराबर, मतलब जिस एंगल से लाइट आ रही है सरफेस पे उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसे डिनोट किया जाता है आई से, आई थिंक. ओके, एंड जिस एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द सरफेस, सो दैट एंगल इज कॉल्ड एज angle of reflection. So it is denoted by r. So there are certain laws like this. Okay, so let us see. We see a clear image of ourselves when we stand in front of a mirror in our house.
To understand how an image is formed in a mirror, let us first consider an image formed by a point source. Light rays travel in all directions from such a source. Several of these rays fall on the mirror, get reflected, and reach our eyes. Due to reflection, they appear to be coming from a point behind the mirror. That point is the image of the point source. Okay, so see, हमारा जो सन होता है, ओके, लेट अस सपोज दिस इज अ सन, एंड सन से जो लाइट आती है, सो वो हर डायरेक्शन में आती है, ओके, इन एवरी डायरेक्शन सन से जो लाइट आती है दैट कम्स इन एवरी डायरेक्शन, सिमिलरली लाइक एनी सोर्स. तो आपके घर में जो बल्ब लगे हुए हैं फिलहाल, ओके, सो बल्ब का जो मैक्सिमम एरिया है, सो उस मैक्सिमम एरिया से लाइट आपको इमिट होते हुए दिखेगी. बल्ब के पिछले साइड से लाइट इमिट नहीं होगी. व्हाई? बिकॉज वहां पे होल्डर है, वहां पे वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती. लेकिन बल्ब के अंदर आप देखोगे तो बल्ब के अंदर उस डायरेक्शन में भी लाइट इमिट हो रही है उस बल्ब से. जस्ट बिकॉज ऑफ द होल्डर वी आर नॉट एबल टू सी दैट लाइट. ओके, सो इफ सी, अगर आपने कभी लेजर बीम रहता है, लेजर बीम मिलता है, एक छोटा सा एक लेजर की बैटरी मिलती है इस तरह से, तो उस मतलब यू हैव सीन दैट, यस, ओके, आप लोगों ने देखा होगा वो. तो अगर आप उसे मिरर पे मारते हो, ओके, इफ यू मतलब इस तरह से स्ट्राइक करते हो, दैट 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 कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रे. तो लाइट का एक रे जाएगा मिरर में. सो इन द सिमिलर फैशन, मतलब उसी एंगल से एक रे मिरर से भी हमें आता हुआ दिखेगा, बराबर, एक रे मिरर से भी हमें आता हुआ दिखता है. सो वेयर दैट where that ray comes from, so that is nothing but the reflection of light, we all know that, isn't it? तो अंदर जो एक सोर्स उस लाइट को इमिट कर रहा है, अंदर मिरर के अंदर, मिरर के पीछे तो कुछ है नहीं, मिरर के पीछे एक्चुअल में कुछ सब्सटेंसेस है, बट दे आर नॉट इमिटिंग लाइट, दे आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट. सो जो चीज मिरर के अंदर से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट थिंग इज नथिंग बट द इमेज ऑफ दैट लाइट. ओके, उस रे की या फिर उस लाइट सोर्स की वो इमेज है जो कि उस रे को रिफ्लेक्ट कर रही है. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स इनसाइड द मिरर. मिरर के अंदर कोई सोर्स नहीं है, लेकिन जो लाइट आ रही है मिरर के अंदर से, वो कहां से आ रही है? दैट इज कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ दैट सोर्स, दैट इज कमिंग फ्रॉम द, सी, coming from a point behind the mirror. That point is the image of the point source. See, तो हमारे चेहरे की जो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें मिल रही है, ओके, उस मिरर से जो हमारे चेहरे की लाइट हमें मिल रही है, सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट लाइट? सोर्स ऑफ दैट लाइट इज नथिंग बट आवर इमेज. हमारा जो प्रतिबिंब, हमारी जो इमेज मिरर में दिख रही है हमें, that is the source of light for us. Okay, that is acting as a source of light for us, that is reflecting actually light, but we are able to see that light, and we can say that our image is nothing but the source of that light. Now figure 11.2a shows light rays falling perpendicular on the mirror are reflected back in the perpendicular direction. So ये mirror है यहाँ पे. सो मिरर के एक परपेंडिकुलर में यहाँ पे एक लाइट रे आ रहा है, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बराबर. जिस एंगल से वो आएगा उसी एंगल से रिटर्न जाएगा. ये लॉ आपने पढ़ा है, इजंट इट? आप लोगों ने पढ़ा है ना ये लॉ. अगर एक स्मूथ सरफेस है, जिस एंगल से लाइट आएगा उसी एंगल से लाइट जाएगा. अभी इस सरफेस के साथ में 90 डिग्री के एंगल से लाइट आ रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल से ही लाइट को वापस भी जाना पड़ेगा, बराबर. सो दैट इज द basic law of reflection of light on a smooth surface. Now, figure 11.2b shows a point source O. See, this is the point source O. In front of mirror M1, M2. So this is the mirror. M1, M2 is the mirror. Incident rays OR1 and OR2 get reflected according to the laws of reflection along path RS1 and RS2 respectively. When these reflected rays are extended behind the mirror, they meet at O1. When seen from E, the rays appear to be coming from O1. Other rays starting from O
also get reflected and appear to be coming from O1. Thus O1 is the image of the point O. तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, लेकिन इतना कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है. सी, इफ यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है जो कि लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है मिरर पे, तो उसी सेम एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें दिखने लग जाएगी. लेकिन हमें क्या लगेगा कि ये जो लाइट है ये यहीं से कहीं से आ रही है, यहाँ कहाँ से आ रही है. ओके, मतलब मिरर के अंदर से कहीं से वो लाइट हमें दिख रही है. लेकिन जहां से वो लाइट आ रही है ऐसा हमें लगता है, दैट इज नथिंग बट द इमेज ऑफ दैट सोर्स. ओके, इमेज ऑफ दैट सोर्स. अभी ये जो ऑब्जेक्ट ओ है इसकी इमेज हमें ये दिखाई देगी और हमें लग रहा है कि ये लाइट स्ट्रेट यहां से आ रही है. ओके, सो इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा. ओके, यू जस्ट यू कैन डू इट विथ योर ब्रदर सिस्टर और एनी ऑफ द फैमिली मेंबर. आपको क्या करना है, you just have to place one mirror. Okay, for example, let us say this is the wall. Okay, and you are placing the mirror here. Okay, यहाँ पे आपने मिरर रख दिया. सुन रहे हैं सब लोग? तो यहाँ पे आपने खड़े रहना है, यहाँ पे आपने खड़ा रहना है. ओके, यू हैव टू स्टैंड हियर एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट योर फ्रेंड और समवन स्टैंड्स हियर. यहाँ पे ऐसी जगह पे वो खड़े रहेंगे जिससे कि आपको वो मिरर में दिखाई दे. ठीक है, आपको वो कहाँ पे दिखाई देने चाहिए, मिरर में दिखाई देने चाहिए. सो यू जस्ट चेक, जब वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जब वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एट द सेम टाइम आप भी उनको यहाँ पे दिख रहे हैं. समझ रहे हो? जब आप उनको यहाँ पे देख पा रहे हो ना मिरर में, तो वो भी आपको दिखाई देंगे या फिर वो भी आपको देख सकेंगे. जब वो यहाँ से हट जाएंगे, सी, लेट अस सपोज दे गोज फ्रॉम हियर टू हियर एंड दे आर नॉट विजिबल टू यू इनसाइड द मिरर, so you will also not be able to visible to them in the mirror. ठीक है, एंगल चेंज हो गया. समझ रहे हो? सो उनको ऐसी पोजीशन पे होना पड़ेगा, लाइक दिस, एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, जिससे कि आपको वो मिरर में दिखाई दे. अगर आपको वो दिखाई दे रहे हैं तो आप भी उनको दिखाई देंगे. यू कैन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो इससे क्या पता चलता है कि नथिंग बट, मतलब कि देखो ये जो आपके बीच में जो रिलेशन रहेगा, दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ओके, ये दो पॉइंट जो है, तो इस तरह से आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है एंड यू विल ऑल्सो ट्राई इट. ओके, सो वंस अगेन प्लीज कंफर्म, सब लोग सुन रहे हैं मुझे? अभिज्ञा ने अभी तक एक भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है. ओके, ठीक है धीरज. यू पीपल जस्ट, ओके, अभिज्ञा आल्सो रिस्पॉन्डेड, वेरी गुड. यू पीपल जस्ट कीप रिस्पॉन्डिंग, कीप आंसरिंग क्वेश्चंस. ओके, कीप इन्वॉल्व योरसेल्फ. सो मुझे भी पढ़ाने में मजा आता है. ठीक है, नाउ, okay, the reflected rays do not actually meet, hence such an angle is called a virtual image. The perpendicular distance of the image from the mirror is equal to the perpendicular distance of the source from the mirror. Okay, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस में किस तरह से चेंज होता है. If we use extended source instead of a point source, an image is formed of every point of the source, thereby forming an extended image of the whole source, as seen in figure 11.2c. An extended source PQ is kept in front of mirror M1, M2. The images of P and Q are formed at P1 and Q1 respectively. Similarly, images of all points between P and Q are formed between P1 and Q1, resulting in the image of P1 Q1 of the entire extended source. So यहाँ पे source कहाँ किसे कहा जा रहा है? Source is this. Source is nothing but a pencil. So pencil, how pencil can be a source? Why it cannot be? It can reflect the light. Okay, it can reflect the light. So it can be considered as a source. So इस source से क्या हो रहा है? देखो यहाँ से एक पॉइंट से लाइट जा रही है, एट द सेम डिस्टेंस, एट द इक्वल डिस्टेंस, अ image is forming, virtual image is forming. Similarly, let us talk about this tip. So इस टिप की जो इमेज, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस पे उस टिप की भी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज.
सो ऑफ एवरी पॉइंट, अभी एवरी पॉइंट की जो इमेज है इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे इस मिरर में बन जाएगी। इसकी वजह से हमें एक एग्जैक्ट फिगर मिलती है, दैट इज P1Q1, जो कि नथिंग बट द इमेज ऑफ और द वर्चुअल इमेज ऑफ दिस सोर्स PQ। ओके, उसकी हाइट, लेंथ, विड्थ ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। व्हाई? बिकॉज every point is having a separate or the actual image, not actual, virtual image, but it is for every point. So that's why, so this is the image that is of same height and same distance from the mirror. Okay, the image formed by plane mirror is of the same size as the source. This is what I was talking about कि plane mirror से जो image बनेगी, that is almost or every time it is of same size as the source. Now here are few questions. Can you tell, if we hold a page of book in front of a mirror, we see laterally inverted letters in the mirror. Why does this happen? So कभी आपने ट्राई किया है या फिर नहीं, पता नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आप एक नोटबुक के पेज पे आपका नाम लिखोगे, एंड इफ यू होल्ड योर नेम और द पेज in front of mirror, so you will be seeing, you'll see that the inverted image of your name has formed in the mirror. Okay, so it is quite interesting thing to think about. So you can think about it कि ऐसा क्यों होता होगा, समझ रहे हो? You have to find out the reason why does it happen, कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपने किया है तो सोच लीजिए इसके बारे में। ओके, सो ये कैसा क्यों होता है ये सोच लीजिए। सो इससे इट गिव्स द व्हाट वी कैन से द व्हाट स्पेस फॉर आवर माइंड टू थिंक, मतलब हमारे दिमाग को सोचने के लिए कुछ चीज मिल जाती है। सो यू कैन थिंक अबाउट इट। Which letters of English alphabet form images that took the same image as the original letter? So this is very okay. You have tried on your t-shirt. So English alphabets में से ऐसे कौन से letters हैं जिनकी की mirror image same आएगी, जिन्हें कि अगर हम mirror में भी देखें तो भी वो same ही दिखाई देंगे। So everyone start putting letters from A. A से start करना है। ए कैन बी सीन एज इट इज, ए से शुरू करो ना, ए भी जैसा का तैसा ही दिखेगा, बराबर। ए विल बी सीन लाइक सिमिलर इन सिमिलर फैशन। मेरा पहला लेटर है ए, व्हाट इज योर्स? मिरर इमेज, मैं अगर इसको मिरर में देखूंगा तो भी ए ही दिखेगा, बराबर बराबर कि नहीं? ए है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, ई नहीं, एफ नहीं, जी नहीं, एच, एच दिखेगा, एच दिखेगा, आई भी दिखेगा, एच आई, जे, के नहीं, एल नहीं, एम दिखेगा, एन भी नहीं, ओ दिखेगा, पी नहीं, क्यू नहीं, आर नहीं, एस भी नहीं, टी दिखेगा, टी भी दिखेगा, एस टी, यू भी दिखेगा, यू भी दिखेगा, ओके, यू, वी भी दिखेगा, डब्ल्यू, एक्स, वाई भी दिखेगा, सिर्फ जेड नहीं दिखेगा। ओके, सो वाई आल्सो कैन बी सीन। ओके, आई थिंक वाई इज मिसिंग। ओके, मैत्रेय हैज रिटन द वाई। ओके, सो ये सारे लेटर्स हमें मिरर में एज इट इज दिखाई देगी। ठीक है, नाउ the image of a word appears laterally inverted in the mirror. The image of every point or the word is formed behind the mirror at the same distance from the mirror as the point itself. Thus it is called lateral inversion. So क्यों ऐसा होता है कि हर एक पॉइंट जो है वो उसी एग्जैक्ट डिस्टेंस पे जाके वहां पे मैप होता है, एक वर्चुअल इमेज बनाता है। इसकी वजह से उल्टी जो इमेज है उस नेम की बन जाती है। ओके, सो व्हाई? बिकॉज मिरर में एवरी पॉइंट की जो इमेज है एट सेम डिस्टेंस बन जाती है। सेम डिस्टेंस यानी कि क्या? अगर ये यहाँ पे मिरर है और मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूं, ठीक है, सो देखिए इस ए की जो टिप है यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए की टिप बनेगी। सो लेट अस सपोज दिस इज डिस्टेंस इज दिस, सो दिस डिस्टेंस यहाँ पे इस ए का ये बनेगा। ओके, सो इस तरह से इमेज बनती है। ठीक है,
अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अनदर एग्जाम्पल लाइक सी, मैं यहाँ पे बी ले लूं, ओके, सो बी की मैं मिरर इमेज फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तो बी के लिए क्या होगा, जिस डिस्टेंस डिस्टेंस पे ये बना है उसी डिस्टेंस पे ये बनेगा, ओके। सो यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा मैं, बराबर। सो इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बनी, इस पॉइंट की इमेज सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे बनी। अभी ये जो कर्व है, इस कर्व की डिस्टेंस देखिए बहुत कम है, तो यहाँ से भी बहुत कम होगी, तो कुछ इस तरह से इमेज बनेगी, बराबर। एंड सिमिलरली यहाँ से जो डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे ये भी कर्व की इमेज बनेगी, ओके। सो दिस इज हाउ द इमेज of B can be formed. Okay, so this will be the mirror image of B. ठीक है, now let's go to the next topic point, whatever it is. When a person stand in front of a mirror, how is the image formed? What is the nature of the image? So first of all, image किस तरह से form होती है ये तो हम जानते ही है, light, because of reflection of light. And what is the nature of image? So first of all, इमेज इज वर्चुअल, ओके। एक्चुअल में उस मिरर के पीछे कोई है नहीं है, उस मिरर के पीछे कोई भी नहीं है ना। सो इमेज इज वर्चुअल, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज इफ देयर इज अ प्लेन मिरर, सो दैट इज अ प्लेन मिरर, यहाँ पे बताया ही है कि प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। सो प्लेन मिरर में इंसान की जो इमेज है वो कैसी दिखेगी, दैट विल बी वर्चुअल एज वेल एज ऑफ सेम साइज। हमने पढ़ा है ना, सी यहाँ पे सेम साइज की मिरर बनेगी एंड वर्चुअल मिरर, सॉरी वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज विल बी द इमेज। प्लेस टू मिरर्स एट अ 90 डिग्री टू ईच अदर, प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन देम, images will be formed in both the mirrors. How many images do you see? So this is a very nice experiment to do. तो घर पे आप कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को, लेकिन मेक श्योर कि आपके घर के जो मिरर है उनको आप तोड़ ना दो, ओके। तोड़ना नहीं है, संभल के करना है, घर वालों की मदद ले सकते हो। इसमें क्या करना है कि आपको 90 डिग्री पे रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। एंगल चेंज हो जाएगा तो आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। So you have to make sure you have to take angle of 19, sorry, not 190, only 90 डिग्री एंगल। इस तरह से दो मिरर रखने हैं एंड उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखना है एंड यू हैव टू काउंट हाउ मेनी इमेजेस हैव फॉर्म्ड ऑफ दैट particular object. Now change the angle between the mirrors as given in the following table and count the number of images each time. This is how is this number related to the measure of the angle, discuss their this relationship. तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया भी है कि किस तरह से आपकी या फिर कितने इमेजेस हमारी बनेगी। Now n is equals to 360 by a minus 1. So n is number of images and a is angle between the mirrors. तो first of all we have put the angle of 90 degree here, बराबर। तो 90 डिग्री अगर मैं a की जगह पे लिखूंगा, so what it will be 3, n की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी ना। कैसे आएगी 3 बताइए, 90 डिवाइड बाय 36, 90 में से 0, 90 में से 0 गया, 36 में से 0 गया, तो बचा 36 डिवाइड बाय 9, 9 4 द 36, मतलब कि ये डिवीजन आएगी 4 एंड 4 माइनस 1 इज 3। सो हाउ मेनी इमेजेस यू विल बी एबल टू सी, 3 इमेजेस, जो कि हमें यहाँ पे भी दिख रहा है 1 2 एंड 3 इमेजेस हैव फॉर्म्ड when two mirrors at a 90 डिग्री एंगल, ओके। सिमिलरली अगर आप एंगल चेंज करोगे, एंगल आपको चेंज करना है 120 रखना है, तो 120 के हिसाब से कितने इमेजेस आपको दिखाई देंगे ऑब्जेक्ट के, हु विल टेल, how many images will you be able to see when the angle between your mirrors is of 120 डिग्री। सिर्फ एंगल की वैल्यू रखनी है फॉर्मूला में एंड हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। कैन यू डू दिस? समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? समझ में आ रहा है तो करो एवरीवन, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। सी आपके मिरर के बीच का एंगल कितना है 120 है, तो यहाँ पे एंगल कहाँ पे रखना है, ये पढ़ के तो कर सकते हो ना, आपके सामने रखा है, यू आर इन द 9th स्टैंडर्ड।
दिस इज काइंड ऑफ ओपन बुक एग्जाम। आपके सामने फॉर्मूला है, वेरिएबल्स है, एंगल है। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, जय का आंसर 3 आया है, मैत्रेय का आंसर 2 आया है, अनुज, अविघ्ना, जय। ओके, जय ने तो आंसर निकाल लिया। अनुज, अविघ्ना, धीरज, 3? Oh, come on, not 3. Just do it properly. See, 360 divided by 120. 120 अगर 360 डिवाइड बाय 120, 0 से 0 कट गया। 12 वन जार 12, 12 टू जार 24, 12 थ्री जार 36, 12 थ्री जार 36। सो 3 रहेगा ना, तो 3 माइनस 1 करना पड़ेगा ना। ये 1 कौन करेगा? 3 में से 1 जाएगा तो आंसर विल बी 2। No, you don't have to forget. Answer is 2. Okay. आपके सामने फॉर्मूला है फिर भी गलती कर रहे हो, एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में अगर ये एग्जाम्पल आता है कोई, तो आपको करना पड़ेगा ना ये। वहां पे तो आपको फॉर्मूला दिया नहीं रहेगा। ओके, सो जब ओपन बुक एक टेस्ट हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना चाहिए। यू हैव टू गिव योर एवरीथिंग। ओके, चलो। So check if number of images that you obtained for different values of angle is consistent with the above formula। तो आपको ये चेक करना है। ओके, जो जैसे सिर्फ यहाँ किताब में बताया है कि आपने मतलब किया है, सॉरी, ये फॉर्मूला में वैल्यू डालो, आपकी वैल्यू आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक्चुअल में करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू डू इट। मैं तो इसका एक आपको होमवर्क ही देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, तो आपको ये दो जो चीजें हैं, इन दोनों के लिए आपको वेरीफाई करना है। ओके, पहले आपको मिरर रखना है 120 डिग्री पे, और आपको नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करनी है दैट ऑब्जेक्ट की। दैट ऑब्जेक्ट कैन बी योर कंपास पेटी, कंपास बॉक्स, और योर वाटर बॉटल, और वॉट एवर इट इज। ओके, इट शुड बी बिग इनफ टू बी विजिबल इन अ फोटोग्राफ। तो ये दो एंगल रखिए, और दोनों एंगल के हिसाब से कितने इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, इसका एक फोटो निकाल के मुझे बताइए। फोटो जब आप निकालोगे तो आपको इसी एंगल से फोटो निकालना पड़ेगा। जिन्हों इन्होंने जिस तरह से फोटो निकाला है ना ऊपर से, तो ऊपर से फोटो निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर आप सामने से फोटो निकालोगे तो आपका मोबाइल भी उसमें आ जाएगा, एंड आपका भी इमेज उसमें आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि सिर्फ मिरर का इमेज आना चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट का और उस ऑब्जेक्ट की इमेजेस का मिरर आना चाहिए। ओके, बाकी कोई भी डिस्टरबेंस उस इमेज में नहीं होना चाहिए। तो ये आपको करना है, एंड यू हैव टू अपलोड दैट फोटोग्राफ as your homework for today. Is that clear everyone? So just confirm who can do this। किसके घर में दो मिरर्स है इस तरह के, and he or she can perform the experiment? How many of you just put yes? If you don't have two mirrors, you don't have to buy them। ठीक है? No, okay, I can't। ठीक है, जो नहीं कर सकते वो छोड़ दो, जो कर सकते हैं वो। Who is there? Okay, so Anuj also no। Maitreya, Avigna, can you people do it? Okay, you'll try your best। Okay, ठीक है। So this is the only homework for Maitreya, and if Avigna is doing, then for her also। Okay, so बाकियों के लिए मैं अलग होमवर्क यहाँ पे दे दूंगा, अभी थोड़ा सा हमारे पास समय है। So we'll see। तो statement, in order to see full image of person standing in front of a mirror, the minimum height of a mirror should be of half height of the person। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एंड आज के लिए हम ये क्लास स्टॉप करते हैं। ओके, सो इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है देखो।
in order to see the full image of a person standing in front of a mirror, the minimum height of a mirror must be half the height of a person. मतलब कि अगर आप 6 फुट के हो तो आपके मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 3 फुट होनी चाहिए. Okay, if you are of 4 feet, then your mirror need to have height of 2 feet in order to see your full image inside the mirror. तो इसका जो प्रूफ है वो हम लोग देखेंगे. ओके, ये जो प्रूफ है ये हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी. So homework for remaining students, let me just go to the your question set. ठीक है. सो देखो, जिन लोगों के जो लोग वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करना है. और सिर्फ वो है एक इमेज यहाँ पे दो इमेजेस रहेंगे ना, 120 डिग्री के लिए एक इमेज और 90 डिग्री के लिए एक इमेज, ऐसे 2 इमेजेस एज अ होमवर्क आप लोगों ने अपलोड करना है, जो जो कोई भी कर सकता है उन्होंने. नाउ दोज हु कैन नॉट डू दिस, you just have to solve questions like, let me just check the questions, which questions you can solve. ओके, सो लेट इट बी. तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस टाइप करके आपको चैट बॉक्स, सॉरी, गूगल क्लासरूम पे दे दूंगा. तो उन क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है. सो व्हाट आर दोस क्वेश्चन? डेफिनेशन ऑफ मिरर, व्हाट इज मिरर? ओके, सो इसकी डेफिनेशन आपने लिखना है. उसके बाद में हाउ प्लेन मिरर इज made. Okay, how plane mirror is fabricated, this question will be there also. After that, what is a reflection of light? Okay, what is reflection of light? This is the third question. And the fourth question will be, oh no, not fourth question actually, you have to write this definition: the image formed by plane mirror is of the same size of the source. ठीक है. सो ये 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, जो लोग वो मिरर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं उन्होंने. ठीक है. सो दिस इज योर होमवर्क एंड remaining portion will continue in the next class, most probably on the on Monday. Aarti ma'am will take your class. Okay, and I'll be continuing your science class on the Thursday only. Okay, so we'll just complete these 4 chapters as early as possible, and then we'll keep solving the test series. Okay, tests. Okay, so it is almost 7:47. Okay, and today's our portion is completed. So I'm just announcing that our class has ended and you people can leave the class. Okay, chalo, bye bye. Bye bye. Bye bye everyone. Maitreya, Dheeraj, Avigna, bye. Avigna, leave the class.